بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداءً سونے کے ذریعے مبادلات سکے ڈھالے بغیر ان کے وزن کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس کے بعد سکے ڈالنے کا آغاز ہوا۔ شروع میں ہر شخص کو سکے ڈالنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس دور کے نظام کو طلائی معیار اور عربی میں قاعدۃ الذہب اور انگریزی میں گولڈ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ پھر سونے کے علاوہ چاندی کے سکے بھی ڈالے جانے شروع ہوئے۔ اس نظام زر کو، جس میں سونے اور چاندی دونوں کے سکے ڈالے جاتے تھے، دو دھاتی معیار بائی میٹالک اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اور عربی میں نظام المعدنین کہتے ہیں۔ معدنین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ لوگ سونے چاندی کے سکے صرافوں کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے اور صراف اس کے وثیقے کے طور پر رسید لکھ دیتے تھے۔ بوقت ضرورت رسید دکھا کر صراف سے اپنا سونا واپس لیا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے صرافوں کی دی ہوئی رسیدوں سے اشیاء خریدنی شروع کر دی، یعنی بجائے اس کے کہ خریدار پہلے صراف سے سونا لے کر بائیں کو دے اور بائیں سونا لے کر پھر صراف کے پاس رکھوائے، خریدار بائیں کو سونے کی رسید دے دیتا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس رسید کا سونا بائیں کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اس طرح رسیدوں سے لین دین شروع ہو گیا اور صرافوں سے سونا واپس لینے کی نوبت کم آنے لگی۔ جب صرافوں نے دیکھا کہ لوگ عموماً سونا واپس لینے نہیں آتے تو انہوں نے لوگوں کا رکھا ہوا سونا دوسروں کو قرض دینا شروع کر دیا۔ اس طرح نوٹ اور بینکنگ کا آغاز ہوا، یعنی صرافوں کی جاری کی ہوئی رسیدیں نوٹ بن گئی، جس کی تفصیل بینکنگ پر گفتگو کرتے ہوئے ذکر کی جائے گی۔ ابتداءً ہر شخص نوٹ جاری کر سکتا تھا، مگر اس وقت یہ ذرائع قانونی یعنی لیگل ٹینڈر نہیں تھے، صرف لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قابل قبول تھے۔ اس مقبولیت اور سہولت کے پیش نظر بعد میں نوٹ کو ذرائع قانونی یعنی لیگل ٹینڈر قرار دیا گیا، لیکن ذرائع قانونی کی حیثیت رکھنے والے نوٹ ہر شخص کو جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکومت کے منظور شدہ آتھورائز ادارے یعنی بینک ہی جاری کر سکتے تھے۔ شروع میں عام تجارتی بینک بھی نوٹ جاری کرتے تھے، بعد میں یہ اختیار صرف مرکزی بینک کی حد تک محدود کر دیا گیا۔ کرنسی اور دینار اور درہم ان بیچ کا 400-500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں علماء کے لیے مسائل شروع کا سمجھنا، نوٹ کے مسائل، چیک کے ڈرافٹ کے مسائل، ATM مشینوں کے اور دوسرے اس قسم کے، اسی طرح دوسرے جو کارڈ ہے، ان سب کے جو نئے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو سمجھانے کے لیے مولانا نے پہلے بنیادی چیز ذکر فرمائی۔ انسانی زندگی کے آغاز میں تو انسان چیزوں سے چیزوں کا تبادلہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایک چیز کو معیار کے طور پر بتایا گیا تو پہلے سونے کو، پھر چاندی کو، اور اس طریقے سے یہ دونوں معادن لوگوں کی ضروریات میں استعمال یعنی وسیلے کے طور پر استعمال ہو جائے۔ پھر یہ ہوا کہ ادھر سے ادھر سونا چاندی لے جانا چوروں ڈاکوؤں کا اس زمانے میں خطرہ، اس کے پیش نظر پھر یہ سلسلہ شروع کیا۔ آپ سن چکے ہیں، یہاں سے چٹھی لکھتی اور وہاں ان کی آفس یہاں بھی ہے، وہاں بھی آفس ہے، کلکتہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں لمبے چوڑے جہاں بھی جاتے تھے، کیونکہ یہاں جمع کروا دیتے تھے، چٹھی دیتے تھے، اس سے ایک شکل تو یہ کہ وہاں جا کر ان کو اتنا سونا ہی ملتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع میں ہوا، لیکن پھر اب سونا دینے میں انہوں نے یہ طریقہ بھی کم کر دیا، اس لیے کہ یہودیوں کو انٹرنیشنل طور پر ساری دنیا کا سونا اپنے پاس رکھ لینا تھا، تو دینار اور درہم کو نکال دیا نے، کاغذی سروس شروع کروائی۔ اسی میں یہ سب سے پہلے انہوں نے اچھا یہ ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں یہودیوں نے کی، دوسرے تاجروں نے بھی، مسلمان تاجروں میں بھی ہندوانی کے مسئلے اس لیے فقہ کی کتابوں میں آتے ہیں کہ اپنی سہولت کے لیے یہ طریقے مسلمانوں نے بھی اپنائے، لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ لوگوں کا سونا اور چاندی کا ذخیرہ اپنے پاس کر لیں۔ یہودیوں نے 400 سال سے انٹرنیشنل طور پر تجارت کے اندر جب یہ لگے، انہوں نے یہ شرارت کی کہ اس طریقے سے یہ چیزیں لے لیں۔ اس لحاظ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں جو کچھ روپیے پیسے ہیں، کروڑوں اور ارب تک کے لوگوں کی بھی بینکوں میں کھاتے ہیں اور اس کے اندر روپیے ہیں، ملے گا روپیہ ہی، لیکن روپیہ لیگل ٹینڈر کے طور پر ختم ہو گیا تو دوسرے دن آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہوئے۔ آپ کو سمجھایا تھا، پرسوں میں ہم پڑھتے تھے، مورارجی دیسائی نے اس وقت یہ نوٹ نکالی تو دوسرے دن اخبار میں آیا کہ یہی 1000 کی نوٹ کے اوپر کھمن رکھا تھا اور کھمن کھا رہے تھے سورت کے تاجر لوگ، اس کا اخبار میں دوسرے دن میں فوٹو آیا، تو پھر کوئی حیثیت اس کی نہیں رہی، تو شوق سے تھوڑے کھا رہے تھے اس پر رکھ کر، کیونکہ 2 نمبری پیسہ تھا، اس کا ٹیکس ادا کرنا مشکل تھا، تو اس طریقے کی بھی لوگوں نے، حالانکہ یہ حکومت کی توہین ہوئی لیکن حکومت نے پہلی توہین کی، اس کو لیگل ٹینڈر سے نکال دیا، کاغذیہ بنا دیا، تو پھر لوگوں نے بھی کاغذ ہی کے طور پر اس کو استعمال کرنا تھا شروع۔ بتلانا یہ ہے
कि अब ये कागजी कार्रवाई शुरू हुई। इन्होंने लिख दिया एक पर्चा और उसमें लिखा कि इसने एक तो ये शक्ल पे वहाँ सोना मिल गया, लेकिन ये तरीका भी फिर खत्म हुआ इसलिए कि फिर वहाँ भी तो कहाँ से सोना लाया जाए, कहाँ रखा जाए। इसलिए ये कर लिया कि सोने की सफाई अपने लिए कर लिए और लोगों को कागज देने शुरू किए। अब आप ये कहो कि कागज से कैसे कारोबार, इन्होंने लोगों को एतमाद दे दिया। एक आदमी ने अपने 100 ग्राम के बराबर सोना यहाँ जमा करवा दिया है, दिनार हम जो भी सोना चांदी जमा कर दिया, अब उसको इन्होंने कागजात दिए। बैनुल अक़वामी तिजारत के अंदर सब जगह पर परेशानी थी सोने और चांदी को मुंतकिल करने की, तो ये कागज इन्होंने दूसरे ताजिर के नाम पर ली, या तो उन्हीं की कंपनी के नाम पर और वहाँ से उसको माल मिल जाए, या वो फिर कागजात दे उसको और वो कागजात जहाँ भी खरीदने के लिए जाओ उसी कागज से आपको चीज मिल जाए। तो शुरू में इस तरीके से हुआ कि ये रसीदें इस तरह की दी, सामने वाले ने भी वो रसीद ली, सामने वाले ने सिर्फ रसीद ली है, लेकिन उसको उसने जिसके लिए रसीद ली, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कार्ड है, ATM कार्ड वगैरह, ये किसी कंपनी के होते हैं। आप मॉल में जाते हैं और मॉल वाले और कंपनी का आपस में राब्ता होता है कि जब ये कागज लेकर जाए तो आपको उसको माल अंदर क्रेडिट आपको जरूरी है, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड भी है जिसमें कोई क्रेडिट नहीं होती है, पैसा नहीं होता है कैश, उसके बावजूद क्रेडिट की बुनियाद पर जो आपको मिलता है, हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, लेकिन एक कारोबार चल रहा है। तो क्रेडिट कार्ड में यही हो रहा है कि आपको फलानी तारीख तक में इतनी रकम जमा करवाई, तो कुछ आपने खरीदा, अगर आपने वो जमा नहीं करवाई रकम, तो फिर जितना पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक महीने की आपने जितनी चीज़ ली उसके ऊपर इतना शरह सूद चल जाएगा। इसलिए उलमा ने मना किया कि पहली नीयत के वक्त ही क्या, पहली जब मामला हो रहा है, करार हो रहा है आपका किसी कंपनी से, यानी आप किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं, तो जिस वक्त आप ले रहे हैं आपको मालूम है कि अभी तो सूद नहीं देना है, लेकिन अगर महीने तक में अदा नहीं किया तो फिर पूरे महीने का। इसलिए हमारे उलमा मना फरमाते हैं कि जिस कारोबार की इब्तिदाई में बुनियादी शर्तों में ही ये है कि सूद देना पड़ेगा। अब ये भी हो कि न दो आप, हमारे रिश्तेदार हैं अफ्रीका में रहते हैं तांजानिया में, उन्होंने एक मरतबा कहा कि मुझे अच्छा उसके ऊपर आप क्रेडिट पर चीज ले रहे हैं उधार और आपको फिर भी एक इसके ऊपर गोल्ड लीडर देते हैं या और कोई ना कोई चीज हदिये में देते हैं ताकि खरीदते ही रहो और इनको कुछ लगा, आप समझो कि इस पर हमें ये मिला, ये इस पर नहीं मिला है, तो उस पर भी मिलता है। जैसे अमीर आदमी टिकट एयरवेज है, आदमी इतने किलोमीटर का सफर करे तो उसके ऊपर उनकी तरफ से उनको सहूलियात थी, उनको बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिलता है और दूसरी सहूलियात, इनको लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहने का, सीधा चला जाने, ये इस तरह की। लेकिन ये भी हकीकत में आपके लिए लालच ही तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करो और गोल्ड कार आपको मिल जाए, इस तरीके से इसमें भी होता है। तो ये सर्राफ के पास सिर्फ कागज़ दिया, उसने उस कागज़ से दूसरे को वो कागज़ दिया। आप बाजार में गए, ताजिर ने भी आपसे ले लिया, बाल कटाने गए उसने भी ले लिया, घड़ी खरीदने गए उसने भी ले लिया। हालांकि ये सब तो अलग अलग है, लेकिन माहौल शुरू में तो परेशानियाँ आई होगी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में से सोना चांदी, जैसे ये इंडिया गवर्नमेंट करना चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाया, इंडिया भी बहुत पीछे है, बहुत बड़ी तादाद बेचारी स्कूल ही नहीं जा रही है। तो अब ऐसे लोगों को कैशलेस करना आसान नहीं है, तो उनको फॉर्म भरते आता, दाखिल करते आता है और इस तरह की हमने इस तरह शुरू की। तो इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लिखा दाखिला फॉर्म, एक साहब ने कहा इंग्लिश मीडियम में तो बंदू नहीं, गुजरात गवर्नमेंट तरफ कीजिए, हमारे पास ऑर्डर आ रहे गुजराती में, हालांकि इंग्लिश स्कूल है, तो ये कुछ न कुछ आसानियाँ सहूलतें करनी चाहिए, फिर उसके बाद मुकम्मल इंग्लिश हो जाए वो अलग है। तो अब ये हुआ कि शुरू में ये परेशानी आई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उर्फ और आदत ताजिरों की हो गई कि कागजात के ऊपर कारोबार शुरू। अब क्या हुआ, आपने जिस सर्राफ को सोना दिया है उसने कागजात दिए, मसलन 1 लाख रुपए के आपने सोना जमा करवाया, आपको 1 लाख रुपए की चिट्ठियाँ लिख दी, इससे गेहूँ भी आएंगे, चावल भी, जुआरी, जो भी आपको लेना है वो सब मिल गया। तो 1 लाख रुपए के जो कागजात दिए थे वो आपने मार्केट में चलाए और आपको 1 लाख रुपए की चीज़ें मिल गई। अब आपको सर्राफ के पास जाने की ज़रूरत पेश आई, अब सोना लेने के लिए क्यों जाएंगे, आपकी ज़रूरत किससे पूरी हो गई, और आप जाएंगे तो वो कहेगा नहीं कि इतनी चीज़ें खरीदी है। जब आप ATM कार्ड से या और दूसरे ATM तो ठीक है, क्रेडिट कार्ड से या और दूसरे जो कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड वगैरह, इनसे जब मार्केट में चीज़ खरीदते हैं तो एक कागज़ आपको मिलता है और एक कागज़ उस
कंपनी के नाम पर जिस कंपनी का ये कार्ड होता है, होल वाले दोनों करते हैं, एक आपको देते हैं और एक उनको देते हैं, तो उनको भी पता चले नहीं कि आपने जिसको कार्ड दिया है वो क्या कर रहा है। तो ये दोनों इस तरह होता है। फिर आपस में इनके भी नफा वगैरह फीसद होता है मुतय्यन, इसलिए दुकान वाला आपको उधार माल दे रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि दुकान से मिल रहा है, दुकान से नहीं मिल रहा है, वो कंपनी से मिल रहा है, और ये आपको दे रहे हैं, तो कंपनी और ये दुकान वाले आपस में मामला तय कर लेते हैं। नफा की शरह भी इनका कितना, नफा की शरह बोले या सूद बोले, जो भी बोले हो, तो इस तरीके से उस जमाने में भी ये चलता रहा। और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में से दीनार और दिरहम कम होते। अच्छा, एक शक्ल ये भी बनी कि 100% जो खालिस दीनार और दिरहम थे, उसके बजाय मिलावट वाले दीनार और दिरहम, जिसको हमारे यहाँ खोत वाला सिक्का, खोटा सिक्का तो पूरा अलग हुआ, और एक एक खोत वाला 100% चांदी और सोना नहीं है, बल्कि उसमें कुछ दूसरी धात भी लगी हुई है, ये फुलूस नाफिका होते हैं। अच्छा, फिर एक खालिस दिरहम से दूसरे फुलूस नाफिका वाले दिरहम, या उनका दूसरा नाम रखा जाए, सीधा इनका दोनों नाम रखे तो फिर गड़बड़ हो जाए। तब ये होता था कि आप चांदी का सिक्का लेकर गए तो परचून उसका आपको मिलता है, वो फुलूस नाफिका का दूसरी धात वाला, ये भी मार्केट में चलता है, वो भी चलता है। दोनों की अपनी जाती सलाहियत है, इसलिए चाहे वो पीतल का है, तांबे का है, किसी भी चीज़ का है, उसकी अपनी जाती कीमत तो है, और वो एक दिनार के बदले में ज़्यादा मिलेगा। में जितना सोना है, दूसरी धात हो गई थी, इतना तो नहीं होगा। इस तरीके से भी बाजार और मार्केट के अंदर कारोबार चलता है। इसलिए फुलूस नाफिका हमारी किताबों में साहिब हिदायत वगैरह ने ये भी मसाइल जिक्र की। लेकिन खालिस कागज़ वाला जो सब मसला है, वो काफ़ी का दौर, काफ़ी के दौर की पैदावार है, हमारे ही दौर की पैदावार है। पिछले 150 साल से ये नोटें और ये सब चीज़ें चली। पहले ये होता था कि हर एक का अपना अलग अलग सिक्का, उसी को भी कुदूरी के पहले समझना आप सुन चुके हैं, अलग अलग सिक्के, तो शहर में जो ज़्यादा राइज होगा वही सिक्का मुराद। ये भी क्या मतलब है? मार्केट में भरूच के नवाब होते थे, उनका भी सिक्का अलग है, आमोद के भी नवाब होते थे, छोटा लेकिन था नवाब, आमोद भी नवाबी गाँव है, सूरत शहर के नवाब थे, इधर भी पंचमहाल में भी बहुत सारे नवाब थे, आसाम में तो हर एक आदमी अभी भी राजा है, आसाम, मणिपुर, नेपाल वगैरह है जो पूरी दुनिया स्थिति। आसाम से टुकड़े किए, वहाँ लड़ाई है, आसाम से टुकड़े नहीं हुए, अलग रहे पहले से ही, वो लड़ाई नहीं है। तो हर जगह अलग अलग छोटे छोटे, यहाँ सूरत के पास था सचिन, वहाँ के नवाब थे, और वो दोपहर को 2 बजे से 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ मेन रोड जो जा रहा था, उस पर कोई आदमी सफर नहीं कर सकता, नवाब सब सो रहे हैं, फिर वो दौड़ था उस तरह का। तो इस तरह भी होता है। तो बतलाना ये है कि हर नवाब के पास भी अपने सिक्के, अब उनके सिक्के में कितना सोना चांदी है वो सर्राफ लोग रोजमर्रा कारोबार होता था इसलिए जान लेते। इसलिए जब आप उसकी दुकान पर किसी और का सिक्का लेकर गए या दुकान वाले के पास भी गए, दुकान वालों को भी मालूम होता था, तो इसके मुताबिक ही माल देते थे। अब जिसके सिक्के में ज़्यादा सोना और चांदी है, मिकदार ज़्यादा है, दूसरे के मुकाबले में, तो उसकी कीमत भी क्या होगी, दूसरे के मुकाबले में अच्छी होगी। ये इस तरह सारी चीज़ें चली मार्केटों में। अब हमारा ज़माना है कि सिर्फ कागज़ चल रहा है, और अब कागज़ भी नोट वाला नहीं बल्कि अब चेक वाला शुरू हो जाएगा कि जिसके अंदर इस तरह का हो। यही इब्तिदा में कागज़ी चीज़ें जो शुरू हुई, फिर उसको हुकूमतों ने एतमाद में रखा। पहले तो हर आदमी या हर कारोबार करने वाला अपनी इस तरह के कागजात नाफिज करता था, इसलिए कि वो वहाँ सोना ले लेता था, और अब उसकी पुस्तक के ऊपर उसकी पेरी होती थी, उसकी बुनियाद पर उसका कारोबार जिन जिन शहरों में चलता है वो सब तमाम शहरों में वो लिख देता था। इस एतबार से सारे इंसानों का इस तरह कारोबार शुरू हुआ कागज़ के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता अब ये हुकूमतों ने देखा कि ये आपस में सिक्कों की लड़ाई, कागज़ों की लड़ाई इस तरह भी शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त तक वो वसीका था, करेंसी की शक्ल नहीं थी, इसलिए ज़कात वाला वो मसला उस वक्त तक वही था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हुकूमतें जब आई, यूरोप ने जब अपनी हुकूमतें संभाली, यहूदियों ने पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम करवाई है, और अभी भी करवाने ही के चक्कर में है सब जो कुछ हो रहा है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब ने लिखा है कि पहली जंग अजीम में यहूदियों के हथियार बड़े बड़े और कोई इस्तेमाल होता नहीं था, तो इस्तेमाल करवाने के लिए यूरोप में लड़ाई शुरू कर दी। पहली जंग अजीम भी वहाँ करवाई, दूसरी भी करवाई, पूरी दुनिया में अभी भी यही लड़ाई भी करवाए, सुलह भी करवाए, और सुलह करने के बाद फिर लड़ाई के लिए भी दरवाज़ा खुला रखा। अमेरिका इंडिया क्या कर रहा है अफगानिस्तान के लोग, ये तो शक्ल हो रही है, किसी न किसी तरीके से ये बंद न होना चाहिए, बंद हो तो ये मजबूत होते हैं, और लड़ते रहते हैं तो ये सलाहियत है।
तो इस बुनियाद के ऊपर यहूदी लोगों ने दुनिया से सोना चांदी तो सब ले लिया, कागज के ऊपर दुनिया को कर दी। चाहे चीजों के बदले में, यानी आप चीज खरीदते हैं तो सामने वाला भी पैसे ही लेता है, लेकिन उसको मालूम है कि ये लीगल टेंडर है, उसके पीछे मैं जब कोई चीज खरीदना चाहूंगा तो खरीद सकता हूँ। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो रुपया है वो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे आपको चीज खरीदनी लेनी होगी तो कोई परेशानी नहीं। दूसरे मुल्कों में गए वहाँ डॉलर की जरूरत पड़ती है, वो इंटरनेशनल करेंसी पाउंड है, या कुछ मुल्कों में दीनार दिरहम वगैरह चलते हैं, सऊदी के, दुबई के। हज के लिए आप जाएं, पूरी दुनिया को हज के अंदर परेशानी किसकी होगी, या खरीदने ही पड़ेंगे, इसके बगैर कारोबार नहीं होगा, आपकी चीजें खरीदो फरोख्त है। तो बतलाना ये है कि अब दुनिया में कागज किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आया, फिर हुकूमतों ने ही इस कागज के ऊपर कंट्रोल कर लिया और हुकूमत का सिक्का आने लगा। अब आप देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से लिखा हुआ ही आएगा, वो सिक्का होगा वही चलेगा, इसके अलावा नहीं। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी का मुख्तस है, ये कानून भी नाफिज करता है। बैंक में आप रुपये जमा करवाते हैं तो RBI को पता होता है, इसलिए आपके ऊपर ये भी आता है कि RBI ने आपका कबूल किया फलानी चीज, कभी कभार मैसेज ये भी आएगी ताकि डायरेक्ट आपको पता चले कि दिल्ली तक भी आपका चाहे वायावाद होकर जाएगा, वाया अहमदाबाद गांधीनगर यहाँ से होकर जाए, लेकिन आएगा जरूर। जिनके पास तो सारा कंट्रोल इन्होंने अपने कब्जे में लिया। ये कंट्रोल में लेना अच्छा भी है बुरा भी है बिल्कुल। अभी तो अच्छा ही को देखा जाए कि किसी की कोई परेशानी हुई तो RBI इस मसले को हल कर देती है। बैंकों के दरमियान आपस में भी हुआ, एक बैंक दूसरी बैंक का खाता कर्जदार का उधर उठाया ने ज्यादा रुपये वसूल कर दी है, उसके ऊपर भी कोर्ट में केस चलेगा तो RBI ही आपकी जजमेंट देगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज उसका फैसला नहीं करेंगे, उसका फैसला कहाँ जाएगा, इसलिए ये मुस्तकिल एक अलग शौका है। हुकूमत भी जो तनख्वाह मिलेगी मोदी को वो भी कौन देगा, क्या कौन सा होगा, RBI ही का जो सिक्का है वही मिलेगा। लेकिन RBI का जो ऑफिसर होगा उसकी भी तनख्वाह कहाँ से होगी, इसी से। लेकिन हुकूमत को जब कर्ज चाहिए तो कर्ज हुकूमत लेगी RBI से, ये नहीं कि सीधा खींच ले जैसे इस वक्त हुआ, इस तरीके से नहीं होता है। अमूमी तौर पर दरख्वास्त देनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो मंजूर करे तो कानून ने मंजूर नहीं किया तो उसको घर जाना पड़ा। उन्होंने मंजूर कर लिया, फिर बीच में एक आया गुजराती उदित पटेल, उनको भी परेशानी आई, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया RBI की ये डायरेक्टर से। तो ये सबसे बड़ा RBI का डायरेक्टर जो होता है ये मुल्क में उसका वजीर आजम के बाद भी उसका एक मर्तबा है, लेकिन चूंकि वजीर आजम इलेक्शन और सेक्युलर निज़ाम से आते हैं और ये ऑफिसर की निस्बत से आते हैं, इसका फर्क मजबूत होता है। अब ये हुआ कि पूरी दुनिया में हर एक मुल्क ने अपने अपने एतबार से अपने मुल्क की करेंसी मुतय्यन कर, वही जो कागज चलता था उस कागज को इस तरीके से अपनी करेंसी में कर दिया। अब दूसरी किसी प्राइवेट कंपनी को कागज छापने का हक नहीं रहा। बैंकें हैं उनके लिए नोट वगैरह नहीं, बैंक का अपना जो कुछ उनकी बुक्स वगैरह है वो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन करेंसी का इसके ऊपर सुधार किया जाएगा। ये सीधा नहीं करेगा कि मेरा एक कागज है इसलिए ये कर लो, उसके ऊपर रुपये ही को लिखा जाएगा ओनली इतने रुपये, और फिर आप बैंक में जाएंगे तो आपको इतने मिलेंगे वापस। तो अब दुनिया के अंदर सोना चांदी खत्म हुई, गैर कानूनी की हैसियत रखने वाले नोट हर शख्स को जारी करने की इजाज़त नहीं मिली। हुकूमत ने शुरू में इजाज़त की अलग अलग बैंकों को, लेकिन फिर हुकूमतों ने अपने कंट्रोल में ये तरतीब की। यहूदियों की एक बड़ी लंबी चौड़ी साजिश थी कि किस तरीके से इसको ऑफिशियली कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। तो शुरू इन्होंने किया था कागज और हुकूमतों के पास मंजूर करवा दिया। अब हुकूमतें खुद ही नोटें छापती है। नोट यानी लीगल टेंडर बनने के बाद इस पर कई दौर गुजरे हैं। एक दौर वो था जब नोट के पीछे 100% सोना होता था। कानूनन इस बात की पाबंदी थी कि जितना सोना मौजूद है उतने ही नोट ही जारी किए जाएं। इस निज़ाम को अरबी में कायदतुन सबाइकुद दहब और अंग्रेजी में गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर जब देखा गया कि लोग सोना लेने कम ही आते हैं तो नोट की पुष्ट पर सोने की शरह कम कर दी गई। शरह के तनासुब बदलते रहे। शुरू में नोट आई तो लोगों का एतमाद बहाल करना था, तो हुकूमतों ने ये कहा कि जितना, यानी मसलन अभी भी लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, लिखा है ऐसा 500 का 100 का। ये क्या मतलब है? एक है बैनुल अक़वामी और एक है बैनुल मुल्की, दो कानून अलग अलग है। करेंसी सिर्फ बैनुल मुल्क चलेगी हिंदुस्तान की, वो बाहर नहीं जाएगी, इसलिए इसके उसूल हिंदुस्तानियों के लिए। अब ये होगा कि आपने जब बैंक से कोई चीज़ ली या आपने पैसे जमा करवाए और फिर आप बैंक से पैसे ले रहे हैं, या आपके पास जो तनख्वाह आई
اور اب یہ جو روپیے ہیں، یہ جو روپیہ آپ کے پاس ہے، یہ حقیقت میں حکومت آپ کی مقروض ہے. آپ نے اتنا کام کیا، چاہے مدرسے سے کیا تو مدرسہ مقروض ہے، لیکن مدرسہ بھی یہ نوٹری لے کر آپ کو دیتا ہے، اس لیے آخر میں حکومت تک اس کا جاتا ہے. اب ایک آدمی مثلا جس وقت مودی نے رات کو اعلان کر دیا کہ آئندہ تک سے ادھر ٹینڈر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اس نوٹ کی حیثیت آپ نے ختم کر دی. اب اس سے نقصان کس کو ہوا؟ جن کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں ان کو نقصان ہوا. آپ نے یہ لکھا ہے کہ گھروں کو 100 روپے دینے کا میں وچن دے رہا ہوں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو حکومت نے جو نظام اس کا کیا بھی، 100 روپے دینے کا وچن دیا تو 100 روپے مارکیٹ آپ بینک میں گئے، پرانی نوٹ لی اور نئی نوٹ آپ کو واپس ملی. قانونی آپ کا حق. اسی طریقے سے کسی وقت حکومت دیوالیہ ہو جائے، آپ کے پاس کاغذ ہے، آپ لے کے گئے، حکومت کے پاس دینے کا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ آپ کی مقروض ہوگی، وہ آپ کو قانونی طور پر کہہ رہے. اچھا، اس کا تو ایک اصول یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے جب نوٹ لیا، اس کا مطلب یہ کہ نوٹ کی پشت پر سونا ہے. اصل تو سونا اور چاندی تھا، اس کو بدل کر کاغذ لائے. تو اب یہ ہے کہ حکومت آپ کو سونا دینے کی ذمہ دار ہے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ حکومت کو یہ کہو کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں چاہیے، 1 لاکھ روپیے کے برابر مجھے کیا چاہیے؟ سونا چاہیے. تو قانونی طور پر وہ دینے کی ذمہ داری. یہ سب بولنا ہے، عملی شکل میں ایسا نہ ہم کریں گے نہ وہ کرتے، نہ کیا ہے کسی زمانے میں. لیکن لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ کاغذ پر لکھ دیا ہے. ایک تو یہ لکھا گیا ہندوستانی نوٹ، ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور ایک ڈالر پر بھی لکھا ہوا ہے. وہ دوسری ذمہ داری لی ہے. یا امریکہ نے جس وقت ڈالر کو بین الاقوامی کرنسی قرار دیا گیا، اس وقت امریکہ نے ذمہ داری لی، پھر اس سے وہ مکر گئے. ہر چیز میں وہی ہوتا ہے منتخب. اور پھر اس کے بعد بدماشی کی. اب ڈالر بھی کم ہوتا ہے تو امریکہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے. ڈالر کی قیمت 70 ہو جائے، ڈالر کی قیمت 77 ہو جائے، ان کو اس سے کوئی فرق پڑتا. نقصان کس کو ہوتا ہے یا نفع کس کو ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو بین الاقوامی کاروبار کرتے ہیں اور اپنے ملک کی کرنسی بنا کر ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں. اب مثلا ڈالر کی قیمت 77 ہو گئے تو ہر ایک ڈالر پر 70 سے ہمیں کتنے دینے پڑے؟ 7 روپئے زیادہ. اب ہندوستانی تاجر جب بین الاقوامی کاروبار میں جائے گا تو اس کو کھوٹ جائے گی. اب یہ کھوٹ کبھی ہندوستان کی اپنی کمی کی وجہ سے ہوئی کہ ہماری تنگی آ گئی اور ہندوستان کا روپیہ نیچے اتر گیا اور ڈالر اوپر بڑھ گیا. کبھی بین الاقوامی وجوہات ہوتی ہے، کبھی سونے چاندی کے بھاؤ میں جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہودی، وہ ادھر اتھل پاتھل کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر شیئر مارکیٹ میں بھی ایسا کرتے ہیں. شیئر کی قیمت ایک دم کوئی بڑی کمپنی ہے، سارے یہودی یا ان کے جو چھلے ہوتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں کہ تم اس کمپنی سے کیا کرنے لگو، اگر تیرا پڑا کسی سے تو کہا اپنے شیئر واپس لے لو. اب سب لوگ اپنے شیئر واپس لے لیں گے تو مارکیٹ کے اندر اس کمپنی کے شیئر کی قیمت کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی. تو اس وقت اس کمپنی کے شیئر پہ حضرت جائیں گے اس کی مداوا بن کر اور یہ کہیں گے کہ ہمیں بیچ دو، یا شیئر خرید لیں گے اس کمپنی کے وہی کم بھاؤ والے. کمپنی کو تو کم بھاؤ میں بھی لوگ نہیں خرید رہے تھے، اب لے لیا. تھوڑی مدت کے بعد اسی کمپنی کو یہ مصنوعی طور پر اس طریقے سے بڑھائیں گے کہ اس کے بھاؤ بڑھ جائیں گے، تو ان کو کم پیسوں میں لیے اور زیادہ پیسوں میں بیچے. یہ دھندے انہوں نے اس میں بھی کیا، سونا چاندی میں بھی. اس لیے رات دن بین الاقوامی کرنسیوں میں بھی جو اتھل پاتھل ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو ملکی ہوتی ہے، لیکن ایک وجہ خارجی حالات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، مصنوعی حالات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. خارجی حالات تو خیر اوپر سے بھی آئے، لیکن مصنوعی حالات بنا ہوتی. تو اب بعد میں سونا لوگ لینے جاتے نہیں، جیسے ہم حکومت نے لکھا ہے، بلکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ 100 روپے دینے کا وچن دیتا ہوں کا کیا مطلب، یہ کیوں لکھا حکومت نے. تو شروع میں جب حکومتوں کو لوگوں کو اعتماد میں لینا تھا کہ وہ اپنا سونا چاندی لے جا رہے ہیں اور کاگڑیاں لے رہے ہیں، تو حکومتوں نے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے یہ کیا، اور بین الملکی طور پر ہوتا بھی ہے، حکومت دیتی بھی ہے. اللہ ہے کہ حکومت یہ کہے گی اتنا لمبا چوڑا روپیہ کہاں سے آیا، تو پھر جواب دینا مشکل، تو پھر ٹیکس اس پر آتا ہے. اب شرح کی تناسب بدلتی رہی. پہلے یہ کہا کہ سونے کے اوپر 90% ہم آپ کو روپیے کے اوپر 90% سونا دیں گے یا 100% دیں گے، یعنی جب بھی آپ کا روپیہ آپ کو خطرہ محسوس ہو، آپ سونا لینا چاہے تو ہم اس روپیے کے بدلے میں آپ کو کیا دے دیں گے. لیکن ایسی نوبت آتی نہیں ہے، اس لیے کہ روپیے سے سونا آ ہی جاتا ہے، تو بینک میں کیوں جائے، اسی روپیے سے سونا لے. اس لیے عمومی طور پر اس طرح یعنی اتنا مضبوط ہو گیا، لیگل وہ ایسا ہو گیا کہ پوری دنیا میں چھوٹا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ روپیے سے آتا ہے.
تو اس لیے اتنی لوگوں کے اندر یہ ہو گئی، اس لیے اب یہ پریشانی نہیں ہے. لیکن اچانک جب کسی ملک کی کرنسی کا کوئی حادثاتی بات پیش آ جائے، اس وقت وہ پریشانی کا حل ہی بتلایا کہ ہم آپ کو دیں گے. تو کتنا دیں گے؟ یہاں تو بھی دیا کہ 100 روپئے دینے کا وچن دیتا ہوں. اس لیے ملک کی کرنسی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، جتنا گیا اتنا آپ کو. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بینک کو یہ کہیں کہ مجھے کرنسی آپ نہیں دے رہے ہیں، یعنی میری کرنسی آپ نے یہ کر لی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ مجھے گیہوں دو، چاول دو. تو بینک کہیں گے یہ دھندے نہیں ہیں، آپ کو دوسری کرنسی بدل کر دے دیتے ہیں، اس سے آپ کو مارکیٹ میں جا کر جو خریدنا ہو. اس لیے کہ بینک کی کاروبار کرنے جائے تو پریشان. تو اس لیے لیکن لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ کہا. پہلے تو 100% سونا کہا تھا، اس لیے لوگوں کو یہ ہوا کہ کوئی. پھر اس کے بعد دیکھا کہ اب لوگ آنے ہیں، کم ہو گئے ہیں، کاغذیہ ہی چل رہا ہے، تو پھر کہا کہ 80%. آپ کا جتنا روپیہ ہے اتنا سونا نہیں ملے گا، اس کے 80% آپ کو سونا ملے گا اگر سونا چاہیے. شرح کے تناسب سے بدلتے رہے، یعنی نوٹ کی پشت پر رکھے ہوئے سونے کی فیصد شرح گھٹتی چلی گئی. ایسے نوٹ کو جس کی پشت پر 100% سونا نہ ہو. یہ نہیں سمجھیں گے تو جدید جتنے مسائل ہیں رات دن لوگ پوچھیں گے. جیسے کل پرسوں میں نے آپ کو کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ انڈیا غریب کیوں ہے، نوٹیں زیادہ چھاپ دیں، مالدار ہو جائے. تو یہ انڈیا میں ہی مالداری آئے گی، لیکن یہ مالداری غریبی میں تبدیل ہوگی. اس لیے کہ جب مارکیٹ میں 5 خریدنے والے ہوں گے تو بیچنے والا بھی تھوڑی مستی کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ یہ نہیں تو وہ، یہ نہیں تو وہ. تو یہ 20 روپئے کی چیز ہے، اس کو 40 روپئے میں بھی یہی تو ہوا تھا. جب زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئی تو یہ مصنوعی بڑھی. دبئی میں جن لوگوں نے لی تو وہاں ہندوستان سے 150-200 سال پرانی ایک فیملی ہے ہندوؤں کی کچھ کی. انہوں نے ہمارے جو پڑوسی صاحب ہے ان کا بھی وہاں ہے، وہ ابراہیم بھائی کو انہوں نے سنایا کہ جس وقت آپ لوگ 100 روپئے میں خرید رہے تھے، اس وقت بھی وہ چیز 12 دینار ہی کی تھی. 100 دینار میں خرید رہے تھے، اس وقت بھی اس کی قیمت کتنی تھی؟ 12 دینار. اس لیے وہ بات بنیے آگے نہیں بڑھے، انہوں نے وہی رکھا اور پھر وہ 12 روپئے پہ ہو گئے. اب جنہوں نے خرید لیا، اب بکی نہیں رہی ہے چیز، تو چیز کم ہوگی. دوسرا یہ کہ بین الاقوامی نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ کے پاس تو کیش ہے نہیں، اب اس کیش کو آپ لگا دیں گے تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ سود پر. سود پر وہ روپیہ آپ نے لیا ہے اور چیز خرید لی ہے اور وہ چیز بکتی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کم قیمت پر بیچ کر کسی طرح یہ ایک تو قیمت کم ہو رہی ہے نا، ادھر سود دے رہا ہے، کوئی غلط طریقہ والا کمایا کچھ نہیں. تو اس طریقے سے اب آپ مجبور ہو کر کسی نہ کسی طرح چیز بیچ دیں گے، اب کم میں بھی بیچ لیں گے. اس لیے کہ دوسرا بہت سارا دچورا ہو رہا ہے. کوئی چیز کسی سے خریدے ہے، وہاں بھی قیمت نہیں ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے، کسی کو مکان بیچا، سب جگہ پر اس طرح جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کاروبار کرنے والے، وہ سب جگہ سے بھی پھنس جاتے ہیں. تو پھر مجبور ہو کر وہ یا تو آپ درد کرتے ہیں، جیسے رات میں اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی یہاں ایک کثرت سے تو اسی وجہ سے اس طرح کا روپیہ لیا ہوا. ایسے نوٹ کو جس کی پشت پر 100% سونا نہ ہو نقود الثقہ فیڈیوسری منی کہتے ہیں. پھر سونے کی شرح کم ہوتے ہوتے صفر رہ گئی اور کم از کم ملکی معاملات کی حد تک نوٹ کی پشت پر سونے کا وجود ضروری نہیں رہا. حکومت نے یہ کہا کہ سونا نہیں لیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کیونکہ لیول کے اندر ہے، اس لیے اس کے بدلے میں دوسرا نوٹ بدل کر وہ دیں گے. ایسے نوٹوں کو النقود الرمزیہ ٹوکن منی کہتے ہیں. ان سکوں کی قانونی قیمت ہماری انڈین روپی ہماری ملک کے اعتبار سے نقود الرمزیہ ہے. کاغذ کو سمجھنا ہے کہ 500 کا ہے. جب یہ رمز اٹھ گیا تو 1000 کی نوٹ اور 500 کی نوٹ ختم ہو گئی. ان سکوں کی قانونی قیمت حقیقی قیمت کی نمائندگی نہیں کرتی. مثلا 100 روپے کے نوٹ کی قانونی قیمت 100 روپے ہے، مگر اس کی ذاتی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ تو دینار سے درہم تھا کہ اس کی اپنی ذاتی قیمت بھی تھی. کچھ عرصے تک نقود رمزیہ کا بھرم اس طرح رہا کہ بیشتر ممالک نے اپنے نوٹوں کو ڈالر سے وابستہ کر رکھا تھا، گویا ان کے نوٹوں کے پیچھے ڈالر تھی. اور چونکہ امریکہ نے ڈالر کے بدلے سونا دینے کا اقرار کیا ہوا تھا، اس لیے ڈالر کے پیچھے سونا تھا. اور اس امریکہ کا یہ معاملہ کب ہوا؟ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی اس میں دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، انگلینڈ اور فرانس. ان کی سپر پاوریت ختم ہو گئی. اور دوسری طرف 1914-18 سے روس کمیونزم نظام لے کر کھڑا ہوا تھا، تو بہت سے ملکوں کو اس نے نگل لیا تھا. اس لیے اس کے بعد بھی بڑی آبادی تھی اور بڑا روپیہ بھی تھا. امریکہ اطمینان سے یہودی چلے گئے تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی سارے یہودی آئنسٹائن اور اس طرح کے جتنے بھی جنہوں نے ایٹم بم بنایا تھا، وہ بنانے والا یہی تھا، جرمنی میں بنا رہا تھا، اسی جرمنی پر پھوٹنے والا تھا. لیکن جاپان پہ چلا گیا. دونوں ملک ایک ساتھ تھے، جرمنی جاپان اور تیسرا ترکی. مصطفیٰ کمال اتاتورک کا نہیں، شاہی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آ گیا، تو بعد میں آیا ہے. تو اب یہ ہوا
कि जब दूसरी जंग अजीम के बाद ये दोनों मार खा के थक गए, इनकी सुपर पावर ये खत्म हुई, इनके सारे ममालिक आज़ाद हो गए, तो अब ये कहाँ जाएं? तो ये तो दब गए अमेरिका के माता। इसलिए जो अमेरिका आज भी कहता है उनको करना पड़ता है। इसलिए कि दूसरी जंग अजीम में हिटलर से इन दोनों को बचाने की पूरी गेम खेली गई और इसके जरिए इंग्लैंड और फ्रांस को ताबे बना लिया अमेरिका ने अपना। दूसरी तरफ रूस का कम्युनिज्म निज़ाम, खैर ये दोनों सुपर पावर ये रही, तो रूस भी खत्म हो गया, अब फिर बढ़ रहा है, पुतिन आकर फिर उसको उसी तरह बनाना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका बैनुल-अक़वामी तिजारत के अंदर आगे बढ़ गया, सारी दुनिया से ज़्यादा मार कर खटा कर इस तरह क्या लेने का है, लोगों से कारोबार इस तरह किया। उस वक्त ये ज़रूरत पेश आई कि बैनुल-अक़वामी कारोबार में परेशानी आ गई। दो मुल्क आपस में कोई चीज़ खरीद और फरोख्त करते थे तो बीच का मेयार क्या, सोना और चांदी तो अब रहा नहीं था, तो अब मेयार किसको बनाया था? तो अमेरिका ने ये कहा कि देखो मेरे डॉलर को दुनिया की बैनुल-अक़वामी कारोबार की करेंसी बना दो, आपको जब भी कोई परेशानी आएगी आपको इतना सोना हम दे देंगे जितने डॉलर आपके पास हमारे हैं, ये हजरत ने कहा। फिर 1971 में नीचे मौलाना ने लिखा है, फ्रांस ने मांगा कि ये डॉलर हमारे पास पड़े, इसके बदले में हमें क्या दे दो। अब चाहे मांगा हो या अमेरिका ने उसको बीच में बनाया हो, यानी उसको बनाया नहीं, उसके जरिए दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था। फ्रांस से अंदर अंदर गिर गया होगा जो भी हो, क्योंकि ये ऐसी कौमें हैं अजीबो गरीब। अभी मुसलमान खुश होते हैं कि रूस बहुत अच्छा है, चाइना अच्छा है, फ्रांस अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है, अमेरिका, ये पाँच है जिनको वीटो का हक हासिल है। लेकिन कभी भी फ़लस्तीन के हक में कोई हमारे पास आया नहीं, किसी ने वीटो इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए कभी बोले कि फ्रांस बहुत अच्छा, अभी तो बहुत बदमाश है अभी जो आया है, लेकिन ये है कि ये सरकार पूरी का खेल है, बेवकूफ़ बनाने के, उल्लू बनाने के धंधे। अमेरिका ने इसलिए 1971 में फ्रांस ने मांगा, अमेरिका ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, जो चीज़ें खरीदनी हो खरीदो, डॉलर तो चल ही रहा बैनुल-अक़वामी, आपको क्या परेशानी है, डॉलर से चीज़ खरीद लो। ये कहकर अमेरिका ने कह दिया कि मैं अब डॉलर के बदले में सोना किसी को नहीं दूंगा, तो फ्रांस को नहीं दे रहा हूँ, तो और इंडिया जैसे, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक, उनका बिछाओं का तो हाल ही नहीं है, तरक्की याफ्ता को जब याफ्ता कर दिया, बाफ्ता छुड़ा दिया उसको। ये इस तरह की पॉलिसी अपनाई। इसलिए अब इसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी कारोबार तो डॉलर ही से हो रहा है, लेकिन अमेरिका को इसकी फिक्र नहीं है, डॉलर की कीमत कम हो यानी फिक्र नहीं, इसका मतलब नहीं कि बेफिक्र होकर गुजरा और सो गया है, ये मुराद नहीं। इसको इतनी परेशानी नहीं है, इसलिए कि दुनिया का कारोबार मुझे थोड़ा नुकसान जाएगा, हमें तो नोट छाप कर दुनिया में पहुंचानी है, और वो भी इतनी छापी है, मौलाना ने एक जिल्द के अंदर बहुत तफसील उसकी लिखी है, इतनी कसीर मिकदार में कि एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि ज़मीन से लेकर सूरज तक, यानी डॉलर को एक के ऊपर एक खड़ा करो तो कहाँ तक जाएगा। अब आप कहो सूरज तो आएगा ना, यहाँ नहीं है, वो 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, जो बात जांचने गया हो, लेकिन साइंस इसका इस पर इत्तेफाक हो गया है कि 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर सूरज बैठे हैं। उसका ये कहना है, अमेरिका ही का माहिर है, उसने ये कहा कि ये नोटें जो तरह आम छपवाई जा रही है, ये किसी दिन अमेरिका का नुकसान करेगी, लेकिन अमेरिका इतना बेवकूफ़ है कि अपना नुकसान उठाएगा, सबको नुकसान में डालकर ही उठाएगा। इसलिए बड़े बड़े मुल्कों ने, चाइना के पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है डॉलर का, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और इसीलिए पहले तो छुप छुपा के डॉलर वापस जाते थे अमेरिका। अब इंडिया गवर्नमेंट ने मनी एक्सचेंज खोल दिए और खुली मार्केट में आप डॉलर और पाउंड को ना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये इंडिया किसके पास गया, दुकान वाले को रोजाना लिखना पड़ता है कि इतना खरीदा नहीं इतना बेचा, अगर डॉलर ज़्यादा मिले अंदर के लिखा हुआ कम है तो कोई बात पूरा में एक साथ इंक्रीज बाई करके उनको जाना पड़ा। तो ये इस तरीके से, यानी धंधा ही छूट गया, ये इस तरीके से हो जाए। ये अलग बात है कि ऑफिसर से मिल जाए ना गड़बड़ हो, यानी वापस मुल्क में ही रहना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट, इसलिए आपके पास जाकर वो कहाँ जाएगा, हुकूमत के खजाने में, हुकूमत ने आपको रुपये दे दिए वाया वाया करके और उसके खजाने में वो जमा हुआ। अब जब इंडिया को कोई चीज़ खरीदनी है वही डॉलर इंडिया इस्तेमाल करेगा, तो इसको अपनी करेंसी के कम या ज़्यादा होने का जो खतरा होता है, इंडियन रुपीज़ लेनी पड़े तो जैसा भी मैंने मिसाल दी 70 और 77 हो गया तो 7 रुपये ज़्यादा, लेकिन जब आपके पास डॉलर है तो आपको कोई खतरा नहीं है। सामने वाले जिस मुल्क से भी खरीद रहे हैं उसकी करेंसी जैसी भी हो, आपको वहाँ की चीज़ खरीदनी है वो भी डॉलर में ही भाव तय करेगा और आप भी डॉलर ही में भाव तय करेंगे, इसलिए दोनों को नुकसान है। अलबत्ता जो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है या जो लोग खरीदते हैं
वो जिस मुल्क में है उस मुल्क की करेंसी को ताजिर को बदलना पड़ती है डॉलर में। मुल्कों को तो नहीं होता है, लेकिन ताजिरों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बदलनी पड़ती है, तो उनको खोज जाती है। इस तरह दूसरे मुल्कों के नोट भी बिलवास्ता सोने से वाबस्ता थे, लेकिन बिलाखिर 1971 में अमेरिका ने भी सोने से डॉलर की वाबस्तगी खत्म कर दी, जिसकी तफसील आ रही है। और इस तरह अब किसी नोट के पीछे कोई सोना चांदी नहीं है। अब नोट महज एक इस्तिलाही समन है जो कुव्वत खरीद की नुमाइंदगी करता है और बस। कुव्वत खरीद की नुमाइंदगी तो करता है। आपको चावल चाहिए तो किससे मिलते हैं? इसी के जरिए मिलता है। इसलिए लेकिन कब तक? जब तक हुकूमत इसको कानून बनाए, उसको समन बनाए हुए। जब हुकूमत ये करती कि इसलिए अब मसला आया, आगे उलमा का इख्तिलाफ भी आ रहा है। अरब उलमा ने करेंसी को सोने चांदी के हुक्म में गिन दिया है। रात दिन इन्होंने दीनार ने दिरहम को बदलते नहीं देखा इंडिया की तरफ। वहाँ चूम ने उनको माल दौलत दिया, इसलिए उनकी करेंसियों में इतना ज़्यादा फर्क आया। देखने आप रियाल इसके लिए जाते हैं तो उम्रा के लिए जाते हैं तो परेशानी हम लोगों को। पहले हम लोग गए थे तो 9 रुपया था, और अभी 18 से भी ऊपर हो चुका है, 20 भी हो गया। ये इस तरीके का भी कितना है, तो उम्रा में जा ही नहीं रहा है तो कहाँ से पता है, तो डबल हो गए। अब ये बोझ किस पर आया? पाकिस्तान की करेंसी हमसे कम है, इसलिए जब हज में कोई मिलते हैं तो वो पूछते हैं कितने में आपका हज, और हम लोग कहते हैं इतने रुपये, वो कहते हैं हमारे इतने रुपये। तो आपका रुपया करेंसी भी तो कम है उसकी, पहले बराबर था, उसके बाद कम हो गए। तो एक और यानी हमारे 10 आए तो उनके 7 आए, 6 आए, इस तरीके से हो गए। तो इस तरीके से नोट अब महज एक इस्तिलाही समन ये बतलाना चाहते हैं कि ये अला शफा जुरूफिन हारिन, बिल्कुल किनारे पर हमें रखता है। कब गिर जाए किनारे का पानी, देख रहे हैं लोग शुरू में आए तो कुर्सियाँ, उसके आगे भी बैठने की जगह थी, वहाँ हम लोग बैठते थे। और अब वो कुर्सी भी गई, आगे का तो गया ही, कुर्सी भी गई है, कुर्सियाँ भी इनको पीछे रखनी पड़ी। 30-35 साल में इतना हुआ तो अभी इतने सभी से लेकर अब तक हैं, इसलिए वो अंदर ही तो होंगे, नर्मदा के भाई थोड़े होंगे। बाहर तो कोई है तभी ताबी उनकी बात कर रहा हूँ, तो नजर नहीं आ रहा है। लोग शौक से पूछते हैं, आते हैं सेमिनारों में, जलसों में, प्रोग्रामों में, कि हमको वहाँ जाना है, अपने पानी देखने जाना है, बाकी और वहाँ कोई बुजुर्ग सोए हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन है तो ये इस तरीके से हुआ। इस तरह ये नौन भी है अला शफा जुरूफिन हारिन, किस वक्त धराका हो जाए और दुनिया सारी की सारी गरीब हो जाए। सारा पल रहा है डॉलर के ऊपर और सारा हम पल रहे हैं रुपये के ऊपर। रुपया डॉलर के ऊपर मुनासिब है, रुपये की बिजाती हैसियत इंडिया की करेंसी है, बॉर्डर से बाहर निकला तो कुछ नहीं उसकी। शरह मुबादला का तयन, मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियों के बाहमी तबादले की शरह कैसे मुतयन होती है, उसके भी मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ तरीके राइज रहे। देख रहे हैं कारोबार कोई सिर्फ बैठ रहा है कि हम रुपये से ही कारोबार करेंगे, इंडिया से बाहर निकलेंगे, फॉरेन से कोई चीज़ मंगवानी है। और अब तो पूरी दुनिया, कारोबारी दुनिया में ग्लोबल विलेज जो हो चुकी है वो यही है। एक चीज़ आप जापान की खरीदेंगे, दूसरी चाइना की खरीदेंगे, या चाइना ही में दुनिया भर की मिल जाए, लेकिन चाइना। तो ये इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया भर की इधर से उधर जा रही है, आ रही है, तो लोग खरीद रहे हैं। अब ये दो मुल्कों के दरमियान या दो मुल्कों के ताजिरों के दरमियान आपस में जब कारोबार हो तो उसकी तायन उसका कैसे हो? आप उसको पूछो कि आपकी फलानी चीज़ कितने में मिलेगी, तो वो क्या बोलेगा? जापान का की जो करेंसी है उसमें बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको डॉलर ही में बोलेगा, और आप भी डॉलर ही में कहेंगे कि इतने डॉलर में मुझे दे। ये पूरी दुनिया में इस तरीके से। तो ये करेंसी शरह मुबादला का तयन, एक तो बैनुल अक़वामी करेंसी हो गई, और एक ये हुआ कि जब कोई मुल्क किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदता है और उसके बदले में अपनी करेंसी देने की बात करता है, तो अपनी करेंसी को दे नहीं सकेगा या चीज़ देगा, तो चीज़ का तयन भी कैसे हो? या कपड़ा दे रहा है और सामने से कोई चीज़ दूसरी खरीद रहा है, तो इंडिया का ताजिर ये कहेगा कि ये कपड़ा है इतने डॉलर, वो कहेगा ये इतने डॉलर का, वहाँ भी डॉलर ही से तयन होगा। 1980 से 1913 तक दुनिया में तिलाई निज़ाम राइज था। गो इससे पहले भी तिलाई निज़ाम राइज था, मगर जिस तरह इस दौरानिये में मुकम्मल तौर पर राइज रहा वैसे पहले राइज न था। तिलाई निज़ाम में हर मुल्क की करेंसी सोने की एक मखसूस मिकदार की नुमाइंदगी करती थी। मसलन इंग्लैंड ने तय कर रखा था कि 1 पाउंड के पीछे सोने की इतनी मिकदार होगी, और अमेरिका ने भी तय कर रखा। इंग्लैंड ही पूरी दुनिया का, इंग्लैंड में फ्रांस की बात है, मालूम है आपको, इन दो के अलावा दुनिया लोगों का भी पूरी दुनिया में था। रशिया भी इतना बड़ा सोवियत यूनियन नहीं था, वो रूस ही था, इसलिए उस वक्त इतने। और चाइना इतना बड़ा मुल्क, लेकिन जापान के साथ जापान हमला करता था चीन पर, ये अजीब वगैरह हमारे ऊपर भी किया नहीं। इंग्लैंड ने इतना छोटा सा मुल्क,
इंडिया पर 5,000 की फौज रखते थे, दूसरी सब इंडिया वाली, और वो आका की गुलामी करते थे। और इस तरह पूरे मुल्क पर 5,000 आदमी हुकूमत कर रहे थे। इतना बड़ा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा जितने भी है चाहे, अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा औरंगजेब ने जो कमा कर दिया था, इराक ने बल कबूल कर लिए थे, जो अभी इराक की जंग चल रही है, बल ऊपर आया शुमाल में अफगानिस्तान के। और अमेरिका ने भी तय कर रखा था कि अमेरिकी डॉलर के पीछे सोने की इतनी मिकदार होगी। जब ये सब इन्हीं के हाथ में था, इसलिए अपनी करेंसी की इन्होंने खुद कीमत तय कर दी। आपस में एक दूसरे से मिल गए, दूसरी जंग अजीम में इंग्लैंड और अमेरिका सब मिल गए। अमेरिका जो कहा वो उन्होंने मान लिया, फ्रांस और इंग्लैंड ने। जब ये तिला तो गुलाम थे, इसलिए सवाल ही नहीं था सोचने का, आकाओं को सोचना होता है। जब ये तिलाई निज़ाम राइज था, उस वक्त दो मुल्कों की करेंसियों में तबादले की शरह इन करेंसियों की पुष्ट पर मौजूद सोने की मिकदार के तनासुब से तय होती थी। यानी ये देखा जाता था कि हर मुल्क की करेंसी के पीछे सोने की कितनी मिकदार है। इस मुल्क के पास सोने के जितने जखीरे, इतनी नोटें छापने का उसको इख्तियार, इससे ज्यादा वो नोट छाप सकता है। दो मुल्कों की करेंसियों के बदले में मिलने वाली सोने की मिकदारों में जो तनासुब होता, उसी तनासुब से करेंसियों का तबादला होता था। मसलन अगर इंग्लैंड के पाउंड के पीछे 4 तोले सोना और अमेरिकी डॉलर के पीछे 2 तोले सोना हो, तो पाउंड और डॉलर में आया कहां से? इंग्लैंड ने तो दुनिया भर से लूटा, इसलिए पाउंड की कीमत अभी भी ज्यादा है, उस वक्त भी ज्यादा है, उस वक्त ज्यादा थी। अमेरिका ने इंग्लैंड को तोड़ने ही के लिए यूरो को नाफिज किया। यूरो नाम की एक करेंसी है जो यूरोप के मुल्कों में भी चलती है ना, हमारे यहाँ भी आ रही है। तो अब बैनुल अक़वामी करेंसी में ज्यादा से ज्यादा डॉलर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोपियन ममालिक है। इंग्लैंड को कहा कि साथ में शरीक हो जाओ, इसने कहा मेरा ग्रेट ब्रिटेन हूँ, मैं किसी के साथ शरीक हो सकता। अभी तो 3 साल पहले वज़ीर आज़म को जाना पड़ा कैमरून को, फिर उसके बाद ये कभी इलेक्शन के बाद ये नया आया। तो उसको जाने की वजह यही हुई कि इस मुल्क के अंदर यानी कारोबार में इंग्लैंड अगर उनके साथ शरीक होता था तो उसको अपने एतबार से तो नुकसान था। यूनियन को एक साथ यूरोप के सारे लोग तिजारत के लिए वहाँ जाते, और फिर डॉलर की कीमत में भी फर्क है, पाउंड की कीमत में फर्क पड़ता है। ये चक्कर है। जाहिर में दोनों मिले हुए, लेकिन अंदर में इस तरीके की लड़ाइयाँ हल्की फुल्की चलती रहती है तमाम मुल्कों में। हर एक अपने मफाद की सोचता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अफगान को क्या हो गया कि वो अफगान के खिलाफ उसको अपने मफाद को देख रहे हैं, ये अपने मफाद को देख रहे हैं। दुनिया भर में ये सब चीज़ें चलती है। आप ज़ाहिरी दीनी नुक्ते नज़र से देखें तो सब जगह दीनी चश्मे लोगों ने नहीं पहने हैं, और दीनी निगाह से नुक्ते नज़र से सब कुछ नहीं देखते। अपना मफाद आता है तो मौलवी भी कह देता है कि फतवा साइड पर रात दिन झगड़ों में हम देखते हैं ऐसा आकर कहने वाले। तो खैर, तो पाउंड और डॉलर में 1 और 2 की निस्बत हुई। लिहाजा दुनिया का सबसे ज्यादा इनके पास ही था सोना, इसलिए किसी जमाने में तुर्की के पास था, अभी भी है, लेकिन म्यूजियम में है। साहब लिखते हैं कि अलीमिया साहब ने लिखा था कि इतनी ज्यादा सबसे ज्यादा सोना तुर्की के पास है, तो मुझे ताज्जुब हुआ। तुर्की की लीरा की कीमत इतनी नहीं थी, बल्कि अभी 9 लीरे हो गए, उसके खिचड़े उड़ गए। तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा था मौलाना को, लेकिन जब खुद गए वहाँ की म्यूजियम देखे तो मौलाना ने कबूल किया साहब ने, मौलाना अलीमिया साहब ने जो फरमाया था वो, इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत थी। अमेरिका राजा भी हदिये में तुर्की को राजी करने के लिए सोना बेचता था। इंग्लैंड के राजा, फ्रांस के राजा, ये सब के साथ हमसे नाराज न हो जाए आका, इस तरीके से करके अब उल्टा हो गया। थोड़े दिन पहले जो सुल्तान बना ओमान का काबूस, जो उसका भतीजा आया है, 1-2 साल पहले इंग्लैंड की रानी को वो हदिये में कोई चीज़ दे रहा है, इन्हें कभी चाहिए, लेकिन वो उसको देखकर इंग्लैंड को राजी करने के लिए, इसी ज़माने में आका थी वो, तो इनको राजी करने के लिए। उस ज़माने में उल्टा था, इसलिए फिकी मसाइल आते थे कि मुसलमान हथियार दुश्मनों को न बेचे। जंग के दिनों में वो हथियार मुसलमानों को मुसलमान बनाए तो बेचे नहीं, ये मसले अब नहीं रहे, तब्दीली हो गई। तो डॉलर में भी ये था, सोना तुर्की के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी नहीं चली, और उसके बजाय इंग्लैंड ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उसका पाउंड आज भी वही है, डॉलर उससे थोड़ा कम है। कभी यूरो और डॉलर का तकाबुल नहीं है, यूरो और पाउंड के तकाबुल के लिए उसको अमेरिका आगे बढ़ाना चाह रहा है ताकि इंग्लैंड कम रहे, सीधा रहे। लेकिन ये सब सोने की मिकदार का था, सोना इनके पास ज़्यादा था इसलिए ये किया, फिर कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए अब बैनुल अक़वामी कारोबार में डॉलर अपने एतबार से चाहे कम है, लेकिन इंग्लैंड से फिर भी आगे हो रहता है। तो पाउंड और डॉलर की 1 और 2 की निस्बत हुई। लिहाजा 1 पाउंड का 2 डॉलर से तबादला होगा। उसके बाद रफ्ता रफ्ता तिलाई निज़ाम खत्म हो गया। उसके बाद शरह मुबादला की सोने वाला, लेकिन सोने का निज़ाम ज़्यादा चला नहीं है, तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी दिन यहूदियों ने चलाया।
गंगा देवी के लोग खुश रहे और इस पर राजी हो जाए। हुकूमतों की यही तरकीब होती है। उसके बाद शरह मुबादला के तयन का क्या तरीका राइज हुआ, उसको समझने के लिए बैनुल अक़वामी तिजारती निज़ाम में जो तब्दीलियाँ आई उनकी इजमाली वज़ाहत ज़रूरी है।